everyone. Welcome to lecture number 28. So, we are beginning with a new topic from today, and this is the third most important topic as per the data that we have collected with the last 10 years. So, the topic is PNC, permutations and combinations. One of the beautiful topic that you will ever find in maths. And what happens is nearly 90% of the students, it's not a stereotypical thought, but 90% of the students find it difficult to understand. It's not like that they cannot do it, but find it difficult to understand the topic. And एक कुछ ऐसे टॉपिक्स मैथ्स के होते हैं जिसमें क्या होता है कि इवन आई फाउंड इट डिफिकल्ट व्हेन आई वाज इन माय 11th and 12th also. To overcome this, there is a particular approach that you need to apply while studying PNC, and which we have done in the comprehensive classes also. पीएनसी पढ़ने के लिए मैथ्स की जरूरत कम है. इफ यू थिंक, देखो मैथ्स क्या होता है कि वी थिंक इट लाइक ओके मैथ्स इज ऑल अबाउट ए प्लस बी का होल स्क्वायर अलजेब्रा. मैथ्स इज ऑल अबाउट ज्योमेट्री वेयर विल यूज पाई स्क्वायर एच एल बी एच. फॉर्मूला बेस्ड होता है मैथ्स, राइट? एक फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे, उसमें जो वेरिएबल्स है वो क्वेश्चन में ढूंढेंगे, उसको डाल देंगे, जो नहीं मिला है, जो वेरिएबल हमको चाहिए उसको निकाल देंगे. दिस इज ऑल अबाउट मैथ्स. देयर इज अ सेट ऑफ formulas. You apply that. If you know the trait of applying the formula in the given question, then only you can end up getting the answer, right? But permutation combination is a different domain. It's all about thinking more rather than solving it more. It's about using your brain rather than your pen, right? So ये एक ऐसा डोमेन है, इसमें क्या होता है कि we cannot shift ourselves from the natural thought that we use in maths to adopt ourselves to this topic. तो हम वही सोचते हैं कि एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज हमें मिल जाना चाहिए, फॉर्मूलाज को हम रिप्लाई कर देंगे, आंसर निकल जाएगा. वही हम फंस जाते हैं. ठीक है. एंड देयर आर टीचर्स, देयर आर फैकल्टीज, देयर आर बुक्स where they mention those formulas also कि okay, if n types are there, if r types are there, the number of selections would be this that. अगर इस तरह का होगा, इस तरह का होगा कि r माइनस के ग्रुप्स अगर होंगे, उसमें कोई कंडीशन दिया होगा तो उसका सिलेक्शन इस तरह आएगा. ये फॉर्मूला जितना रटोगे आप एग्जाम में उतना ही फेल कर जाओगे टू अप्लाई इट. आई एम नॉट टेलिंग दैट यू कैन नॉट एबल टू डू इट, but application is bit tougher if you wrote it in that fashion. तो इसको पढ़ने का कुछ अलग ही तरीका है. So if you know that approach, then only you can understand the question and you can apply them in your exam, right? Now let us begin without any delay. The question number one. Mark my words here. You will find very easy this topic if you have read it. And if you haven't read it, I would suggest you please first read it, then only come to watch this lecture. Then only you can understand what is explained. Or else you will find and you will have this thought that what the teacher is explaining, I'm unable to get it, right? So, without any delay, let us begin with question number one. The question number one says a person goes from A to B, always moving to the right or downwards along the lines, how many different routes it can adopt. यहाँ पे ये परमुटेशन का डायरेक्ट सवाल नहीं है, बट वी नीड टू केस, वी नीड टू अलॉट देम सर्टेन केसेस, सो दैट इज आई पिक दिस टॉपिक इन परमुटेशन कॉम्बिनेशन. तो जब रूट का क्वेश्चन है ए से लेके बी तक, तो आप क्या करोगे, हर एक रूट को एक नंबर दे दो. इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10, इसको 11 और इसको 12. आई होप यू हैव गॉट इट. यहां से लेके यहां तक रूट नंबर 1 है, जैसे मार्ग 1. यहां से लेके यहां तक इट इज द रूट नंबर 2, रोड 2. यहां से लेके यहां तक रूट नंबर 5. यहां से लेके यहां तक इट्स रूट नंबर 11. ऐसे किया है हमने. ठीक है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज the person will move from A to B and the person can go rightward or right side of it or downwards, right? तो इसका ये मतलब है 1 से लेके अगर इस पोजीशन पे है, द पर्सन कैन गो टू 2, द पर्सन कैन कम टू 4. गॉट इट? द पर्सन कैन गो टू द 2 or the person can come to 4. The person can go to the right, the person can come to the down. बट यहाँ इस पोजीशन से वो 6 रूट पे नहीं जा सकता है. क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? राइट. अभी हम केसेस लिखेंगे. पहला केस है ए से लेके इनकमिंग आउटकमिंग का लॉजिक मैंने बताया था. ए से लेके दो रूट्स अवेलेबल है. सो कैन आई राइट 1 एज अ रूट एंड 3 एज अ रूट अभी के लिए.
क्लियर? यही है केस लॉजिक, कि आप केसेस लिखो। वन से लेके कितना केसेस है, जितना केसेस है उतना रूट्स बनाओ। एक टू पे जा सकता है, सीधा जाएगा टू पे, और एक फोर पे जा सकता है। अभी तीन केसेस हमारे पास हो गए। तो टू पे कहाँ जाएगा? टू से एक ही रूट है, वो फाइव तक जाएगा। फाइव पे कुछ चेंजेस हो रहा है? नहीं, फाइव से वो सीधा ही जाना पड़ेगा, सेवन पे नहीं जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड हो जाएगा। टेन रूट पे गया, बी पे पहुंच गया। क्लियर? हो गया काम। अभी फोर पे क्या होगा? फोर रूट पे है। फोर से एक रूट सेवन पे जा सकता है, नाइन पे जा सकता है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? क्योंकि राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड डाउनवर्ड्स। एक रूट सेवन पे जा सकता है, एक रूट ट्वेल्व पे, नाइन पे जा सकता है। जब वो सेवन पे जा रहा है, वो कहाँ जाएगा फिर? वो टेन तक जाएगा। फिर नाइन पे अगर जा रहा है, वो कौन सा रूट लेगा? ट्वेल्व पे रूट लेगा। तो ये बी पे पहुंच गया और ये बी पे पहुंच गया। खत्म। इजी। गॉट इट? और कुछ रूट्स नहीं है वन के लिए। अभी थ्री पे आ जाओ। थ्री पे कितना रूट्स है? एक थ्री पे एक बाइफर्केशन यहाँ पे हो रहा है, वो सिक्स के रूट पे जाएगा, और एक एट वाला रूट पे जाएगा। जब वो एट वाला रूट ले रहा है, तो एट से वो सीधा जाएगा इलेवन और ट्वेल्व पे जाके ड्रॉप हो जाएगा। फिर बी हो गया। अभी सिक्स पे कौन सा रूट अवेलेबल है? सिक्स पे एक रूट सेवन पे जा सकता है, नहीं तो नाइन पे जा सकता है। अगर सेवन पे गया तो वो टेन पे जाएगा, टेन पे जाके बी पे पहुंच गया। फिर नाइन पे जा रहा है, ट्वेल्व पे जाएगा, फिर बी पे पहुंच गया। टोटल कितने केसेस है? ये दिस इज योर फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, सिक्स्थ केस। तो योर आंसर वुड बी सिक्स। सिंपल। अभी आप ये सोचोगे कि अच्छा ये रूट ऐसे ऐसे चित्र बनाओगे, हाँ ऐसे करके, तो आपका आंसर कभी नहीं बनेगा, फंस जाओगे। ओके, सो दिस इज योर अप्रोच दैट यू गोना यूज टू राइट द ऑल द केसेस। अच्छा, वन पे है तो कौन सा रूट अवेलेबल है वन से? अच्छा, वन से यहाँ पे दो के लिए जा सकता है, चार के लिए जा सकता है, तो मैंने लिखा दो पे लिए, चार के लिए। दो पे हो गया, दो से वो कहाँ जाएगा? पांच वाला रूट लेगा। और कुछ केसेस, जहां पे केसेस बनेगा राइट इट, जहां पे केसेस नहीं बनेगा कंप्लीट इट। यही लॉजिक है। Wherever you get cases, write it. Wherever you don't get cases, complete it. Clear? So with this logic, you can write all those cases without any difficulty. Clear? Okay. Now let us proceed to the next question. These are the root based question which usually come in PNC. रूट बेस्ड क्वेश्चन में क्या है? बहुत आसान है। काम खत्म हुआ है, मैंने बताया था क्लास में आपको, काम अगर खत्म हो गया है तो आपको क्या करना है, काम खत्म नहीं हुआ है तो क्या करना है। अगर काम खत्म नहीं हुआ है, मल्टीप्लाई करना है, काम खत्म हो गया है तो ऐड करना है। ठीक है? बिकॉज आप अलग केस पे चले जाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज आई कैनॉट टीच ऑल दिस हियर, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। फर्स्ट लेक्चर में हम 2 घंटा इसी पे ही बात किए थे, व्हाट इज एडिशन, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज दिस फॉर्म्स द बेस फॉर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. We cannot start permutation combination with factorial. We cannot start permutation combination with NPR. If you don't know what is addition and what is multiplication, you cannot do NPR. तो NPR हम कम यूज करते हैं, आधा टाइम तो हम एलोकेट करते हैं, राइट? अभी देखो, ए एक रूट है, बी एक सिटी है, और सी एक सिटी है। ए से लेके बी तक कितने रूट्स है? चार रूट्स है। बी से लेके सी तक कितने रूट्स है? सिक्स रूट्स है। अभी आप कहां से जाओगे? हाउ मेनी रूट्स आर पॉसिबल टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सी? वेरी इजी। ए से लेके सी तक कितने रूट्स है? पहले वो चार रूट्स लेके बी तक जा सकता है। काम खत्म हुआ है क्या? नहीं हुआ है, हमें सी तक पहुंचना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर क्या करोगे? बी से लेके सी तक कितने रूट्स है? सिक्स रूट्स है, क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ है। टोटल रूट्स कितना हुआ? 24। सो योर आंसर इज 24। सिंपल। गॉट इट? इसका मैं लॉजिक बता रहा हूं कैसे हो रहा है। सपोज ए से लेके बी तक दो रूट्स अवेलेबल है, वन, टू। बी से लेके सी तक तीन रूट्स अवेलेबल है, थ्री, फोर, फाइव। हाउ दिस वर्क्स द परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, हम इतना लिख नहीं पा रहे, इसलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, विच इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। नाउ यू सी कि अगर ए से लेके बी तक है, तो मैं बताया था आपको रूट लिखना है। आपको ए से लेके कितना रूट्स अवेलेबल है? ए सिटी से आपके पास वन रूट एक अवेलेबल है, टू रूट एक अवेलेबल है। वन से लेके आपके पास कितना रूट अवेलेबल है? एक थ्री रूट अवेलेबल है, एक फोर रूट अवेलेबल है, एक फाइव रूट अवेलेबल है। थ्री से लेके आप सी तक पहुंच गए, क्योंकि और कोई केसेस नहीं है जो अभी बताया। टू से लेके आपके पास कितने केसेस है? थ्री एक केस है, फोर एक केस है, फाइव एक केस है। सी तक पहुंच गए, सी तक पहुंच गए, सी तक पहुंच गए। क्या हुआ? कितने केसेस आए? सिक्स केसेस आए या नहीं? इसका ये मतलब है, यहाँ पे दो केसेस अवेलेबल है, यहाँ पे तीन केसेस अवेलेबल है। आपका काम खत्म नहीं हुआ है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे। अगर काम खत्म हो जाता तो आप ऐड करते। सिंस काम खत्म नहीं हुआ है, यू हैव टू मल्टीप्लाई टू कंप्लीट द टास्क। तो टू इंटू थ्री, एम रूट्स एन रूट्स, इंटू करो एम एन रूट्स, दैट इज सिक्स रूट्स। इजी। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे लेकिन फोर था, सिक्स था, इसलिए 24 आ गया। इसका और एक क्वेश्चन आया है, उसको हम देखेंगे आगे। ये बहुत ही अच्छा सवाल है।
ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन में आप गलत कर लेते हो, क्यों? आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं हो। लेट अस रीड द क्वेश्चन केयरफुली। Six identical cards are placed on a table. Identical cards. These are the six identical cards which are placed on the table. Each card has a number one marked on it. Got it? Is it clear? All the six cards, each card has a number one marked on one side and the other side is two. Okay. यहाँ तक समझ में आ गया? All the six cards are placed in such a manner that the number one is on the upper side. Number one is on the upper side. In one try, यही गलती कर देते लोग, पढ़ते नहीं है। एक ही बार में एग्जैक्टली फोर, नीदर मोर नॉर लेस, कार्ड्स आर टर्न्ड अपसाइड डाउन। मतलब आप एक बार में चार कार्ड्स एग्जैक्टली टर्न कर सकते हो अपसाइड डाउन। अगर मैं बताऊंगा एग्जैक्टली चार आप टर्न कर सकते हो, तो आप एक टाइम में चार कार्ड्स ही अपसाइड डाउन टर्न कर सकते हो। अगर मैं बताऊंगा एटलीस्ट चार कार्ड, तो आप क्या करोगे? एटलीस्ट का हिंदी बताओ क्या होगा? कम से कम चार कार्ड, तो चार हो सकता है, पांच हो सकता है, छह हो सकता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को एटमोस्ट बता दूंगा तो ज्यादा से ज्यादा चार कार्ड कर सकते हो। तो 0 1 2 3 4। अंडरस्टूड? एक साथ में आप चार कार्ड टर्न कर सकते हो। इन हाउ मेनी लीस्ट नंबर ऑफ टाइम, कितने कम कोशिश में, can the cards be turned upside down such that all the six cards show two on the upper side? कितने कम कोशिश में आप टर्न कर सकते हो तो सारे दो आ जाएंगे? बताओ। In one try, exactly four cards are turned upside down. In how many least number of tries can the cards be turned upside down such that all the six cards show two on the upper side? First try. आपने चार कार्ड अपसाइड डाउन ट्राई किया। लेट दिस बी द कार्ड्स। इसमें टू आ गया, इसमें टू आ गया, इसमें टू आ गया, इसमें टू आ गया। अभी नेक्स्ट ट्राई करोगे। सेकेंड ट्राई में आप क्या करोगे? ये टू है, इस चार को उल्टा कर दो। हो गया। अभी थर्ड ट्राई में आपको चार कार्ड उल्टा कर सकते हो, जो चार वंस है उसको उल्टा कर दो। सारे टू आ गए। अभी आप सोचोगे कि सर मैं इस दो को और इस दो को उल्टा कर दूं तो आपके एंड में क्या होगा? एंड में दो वंस आ जाएंगे। नहीं होगा। आपको यहाँ पे ये पेनल्टीमेट में आपके पास चार वंस चाहिए, तभी आप जब उल्टा करोगे वो आपको देगा क्या? वो आपको देगा टू। राइट? चार वंस कैसे मिलेगा? एक वन यहाँ पे है, यहाँ पे तीन वंस चाहिए, तो तीन वन कैसे मिलेगा? अगर इस तीन दो को मैं उल्टा कर दूं, तीन वंस आ जाएंगे। गॉट इट? सो योर आंसर वुड बी थ्री। बट लॉजिकल, इसमें कोई पढ़ाने वाली बात नहीं है। यू हैव टू थिंक। राइट? नाउ, coming to the next question, again root based question. With reference to the figure given below, the number of different routes from S to T without retracing from U or V, मतलब पीछे नहीं आ सकते हो। Got it? S से लेके T तक। S U V T। S से लेके U कितने रूट्स है? तीन रूट्स है। U से लेके V दो रूट्स है। V से लेके T तीन रूट्स है। टोटल मल्टीप्लाई करो। 3 × 2 × 3 कितना हो गया? 3 3 90, 9 × 2 18। So your answer would be D. Easy? Got it? Now, 12 people form a club by picking lots. One of them will host a dinner for all once in a month. The number of dinners a particular member has to host in 1 year is. ज्यादातर इस सवाल को आंसर वन टिक करके आएंगे, बट ये गलत है। इट कैनॉट बी प्रेडिक्टेड। वाई? 12 लोगों का लॉट्स है, किसका लॉटरी लगेगा कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ डिनर्स अ पर्टिकुलर मेंबर। चलो हम तीन लोग हैं सपोज। किसका लॉटरी आएगा कैसे पता चलेगा? इसका अगर 12 बार आ गया, या इसका अगर 10 बार आया, इसका 2 बार आया, यू कैनॉट टेल ना। दिस कैनॉट बी प्रेडिक्टेड। लॉटरीज आर
predictable. Clear? Got it? Coming to the next question. A selection is to be made for one post of principal. Principal के लिए एक post, two post of vice principal. Vice principal के लिए two post. Restricted है. One post ये two post. ठीक है. Amongst the 6 candidates called for the interview, only two, यही main है. Only 2 are eligible for the post of principal. Principal के लिए 2 लोग eligible है. Out of 6. और vice principal के लिए all are eligible. All. The number of possible combination of select is. जहां पे पहले restriction है उसका काम खत्म करो. अगर आपके पास A, B, C, D, E, F, G है, भाई ये बता रहा है कि इस दोनों ही केवल प्रिंसिपल बन सकते हैं, तो पहले बनाओ ना प्रिंसिपल. चलो मैं कैसे बनाऊंगा? 2C1 से बनाऊंगा. क्यों? 2 लोग हैं, उसमें से किसी एक को प्रिंसिपल बनना है. 2C1 काम खत्म हुआ है? नहीं हुआ है. मल्टीप्लाई करूंगा, किसी को बना दिया, सपोज ए को बना दिया. बचे कितने? बचे कितने लोग? 5 लोग. 5 लोग में से आपको कितने सिलेक्ट करना है? 2 लोग को सिलेक्ट करना है. इजी. तो कितना हो जाएगा? 2. 5 into 5C2 का कैलकुलेशन, 5 into 4/2, दैट इज इक्वल टू 20. इज इट क्लियर? तो योर आंसर इज नन ऑफ द अबव. गॉट इट? If you have read PNC, these things are very easy. If you haven't read it, you will find this thing will be very difficult for you to handle. Okay, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे क्या 5C2 हो रहा है, क्या 2C1. So I request everyone to go and read your PNC notes. Then only you can understand. Now, a student has to opt for 2 subjects out of 5 subjects. 5 subjects में से 2 subject choose करना है of a course, namely commerce, economics, statistics, mathematics 1, mathematics 2. Mathematics 2 can be offered only if mathematics 1 is also opted. So mathematics 1 और mathematics 2 का combination हो सकता है. बाकी mathematics 2 किसी और के साथ combine नहीं कर सकता है, right? The number of different combinations of 2 subjects which can be opted. इस तरह का क्वेश्चन में जहां आपके पास रेस्ट्रिक्शन है ना, हमेशा एक रूल यूज करना है कि सब्ट्रैक्शन रूल. बताया था क्लास में, सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इजी रह जाएगा. कैसे? अगर कुछ कंडीशन नहीं होता, चलो ये कंडीशन नहीं होता, आपको 2 सब्जेक्ट चूज करना है, तो आप क्या करते? 5C2 करते. अभी मैं ये कंडीशन डाल दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया. किसको? मैथमेटिक्स 2 को. मैथमेटिक्स 2 कितने बार आ सकता है बताओ? एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ. 4 केसेस में आ सकता है या नहीं? मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स SEC कितने केसेस में आ सकता है? 4 केसेस में आ सकता है. बट वो आएगा किसके साथ? M1 के साथ. तो बाकी 3 केसेस गलत. इसको इससे हटा दो, क्योंकि वो इसमें है या नहीं? इसमें है. तो 5C2 कितना हो जाएगा? 5 into 4/2 -3, दैट इज 10 -3, दैट इज 7. आई होप यू हैव गॉट इट. क्लियर? सर आंसर इज 7. गॉट इट? So this is all about this lecture. We'll see you again in the next lecture. Till then, have a great day. Bye bye. Take care, everyone. Jai Hind.